But when he began to keep bad company with the world, लेकिन जब उसने दुनिया के साथ बुरी रफाकत रखना शुरू कर दी, one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize, breaking up fellowship amongst other believers, because it found out that nations were organized. तो ये बदतरीन कामों में से एक था, और जो पहला काम उसने किया वो मुनज़्ज़म होना था। उन्होंने दूसरे ईमानदारों के साथ रफाकत खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कौमें मुनज़्ज़म हैं। But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. It's dedicated to whosoever will let him come. Amen. All nations, kindreds, tongues and people. लेकिन ये अजीम खुशखबरी किसी एक कौम या लोगों की जागीर नहीं है। ये तो उसके लिए मखसूस है जो कोई भी इसमें आना चाहेगा। सब कौमें, कराबती, अहले लुगत और सब लोग हैं। God never did intend for us to draw boundary lines. खुदा ने कभी भी इसके लिए कोई हदबंदी की लकीर खींचने का ख्याल हमें नहीं दिया। But man wanted to be like they compare or to copy after. Go like the world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success. लेकिन इंसान चाहता है कि उनके साथ मुवाजना करके उनकी नकल करे और दुनिया की तरह करना चाहता है। वो काम जो वो करते हैं उसी तरह कामयाब होना चाहता है जैसे वो कामयाब हुए हैं। We cannot never be a success doing anything the world does. हम दुनिया जैसे काम करके कभी भी अपने लिए कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। We can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. हम कामयाबी तब भी हासिल कर सकते हैं जब खुदा की शरीयत को माने और उसके तरीके के मुताबिक काम करें। We can never be by pattering after the world. दुनिया के नमूने पर चलकर हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। If the cigarette company has met their greatest success by television, and the beer and the whiskey crowds has made their great success through the contribution of television, that's no sign that the church shall make its success by television. Amen. टेलीविजन के जरिए सिगरेट की कंपनी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बियर और शराब वालों को भी कामयाबी की बड़ी भीड़ टेलीविजन की मदद से हासिल हुई है, मगर ये इस बात का निशान नहीं है कि कलीसिया को भी कामयाबी टेलीविजन से मिलेगी। The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God and the demonstration of the Spirit. कलीसिया की कामयाबी खुशखबरी की मुनादी करने और खुदा की कुदरत और रूह को जाहिर करने में है। We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies. हम ये नहीं कह सकते कि सिगरेट कंपनी के लिए और दूसरी कंपनियों के लिए टेलीविजन ने ऐसा ऐसा किया है। We do not have any scripture to try to compare with them people. हमारे पास कोई ऐसा हवाला नहीं है जिससे हम अपने आप का मुवाजना उन लोगों के साथ करें। And as long as we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do. और जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तो हो सकता है हम बहुत से लोगों को बढ़ा लें, मगर ये वो नहीं है जिसके लिए खुदा ने हमें मखसूस किया है। We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success. We are dying daily on our feet, spiritually speaking. हम सोचते हैं क्योंकि हमारे पास हर रंग, आला चीजें और बड़ी तंजीम है, और यही वजह है कि हर तरफ रंग रलियां हो रही हैं, और यही तो कामयाबी है। अगर रूहानी एतबार से कहूं तो हम हर रोज अपने ही कदमों में मर रहे हैं। If we stood 10 million strong this morning and the Holy Spirit wasn't with us, we'd do well to stand 10 strong with the Holy Spirit with us. अगर हम आज सुबह 1 करोड़ मजबूत खड़े हों और रुल कुछ हमारे साथ ना हो तो हम 10 खड़े हों, जिनके साथ रुल कुछ हो तो वो ज्यादा मजबूत होंगे। We cannot compare with the world.
हम अपना मुवाजना दुनिया से नहीं कर सकते। One of the first things was the church began to organize themselves. और सबसे पहली बात ये हुई कि कलीसिया ने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया। The first organization was the Catholic Church. And then come the Lutheran Church. पहली तंजीम कैथोलिक कलीसिया थी और फिर लूथरन कलीसिया आई। When they organized in the Catholic Church to make it an organization, one day there was a cry. The Philistines is on thee, Samson. And Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church, and Martin Luther came forth. Amen. With the organizations. जब उन्होंने कैथोलिक कलीसिया को मुनज़्ज़म करके एक तंजीम बना ली, तो फिर एक दिन ये आवाज आई, समसून फलस्ती तुझ पर चढ़ आए, और समसून ने कैथोलिक कलीसिया की रस्सियों को तोड़ डाला, और फिर मार्टिन लूथर एक तंजीम के साथ आया। Then they bound the church with another cord, as Delilah did. फिर उन्होंने फिर कलीसिया को रस्सियों से बांध दिया, जैसे दलाइला ने किया था। And they began, instead of having God call men who were called by the Holy Spirit, maybe didn't know their ABCs, but they know Christ. और उनका आगाज हुआ, वो आदमी जिनको खुदा ने बुलाया हो, वो आदमी जिनको रूल कुश ने बुलाहट दी हो सकता है वो अपनी ABC ना जानते हों, लेकिन मसीह को जानते थे। Then the church got stylish and fashioned after the political speakers. मगर उनकी बजाय कलीसिया में स्टाइलिश, फैशन वाले और सियासी तकरीर करने वाले आ गए। And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity. और फिर उन्होंने अपने मुनादों को डॉक्टर की डिग्री देना शुरू कर दी, और फिर इल्मे इलाहियात की डिग्री लेना जरूरी हो गया। That was another cord to bind the church. ये एक और रस्सी थी जिससे कलीसिया को बांधा गया। Men go off and study. Each seminary tries to produce a better scholar so that their churches can brag, our pastor is a doctor of divinity. आदमियों को जाकर सेमिनरी की तालीम लेनी पड़ती ताकि उन्हें एक अच्छा आलिम बनाने की कोशिश की जाए, ताकि कलीसियाएं शेखी मार सकें कि हमारे पास्टर के पास इल्मे इलाहियात की डिग्री है। What did they do? One tried to have more knowledge than the other. और उन्होंने क्या किया? एक दूसरे से बढ़कर इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। Well, that doesn't mean anything in the sight of God. ठीक है, इसकी खुदा की नजर में कोई अहमियत नहीं। And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. It's an abomination in the sight of God. और किसी शख्स को यह दुनियावी इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इससे खुदा को खुश नहीं कर सकता। खुदा की नजर में यह एक मकरूह चीज है। You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the Scriptures. He cannot do it. आप कभी भी इस दुनियावी इल्म और जज्बे के साथ खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम फरमाता है ये खुदा से दुश्मनी है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। And each one tries to have all the knowledge. और हर कोई पूरा इल्म हासिल करने की कोशिश करता है। They know just what to do and the words to say. And it becomes just a political speech instead of a powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sins. वो जानते हैं कि उनको कौन सी बातें कहनी है, और इस तरह उनका पैगाम एक सियासी बन जाता है, बजाय रूल कुश की कुदरत से जाहिर किया गया पैगाम हो, जो इंसान के दिल में उतरकर गुनाह को जाहिर कर दे। They're trained for political talks. And we don't need that. ये लोग सियासी बातचीत के लिए तैयार किए जाते हैं, और हमें इसकी जरूरत नहीं है। Paul said the word come to us not only, or the gospel in word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost. पालूस कहता है कलाम हमारे पास ना सिर्फ या अंजील सिर्फ लफ्जों में नहीं आई, बल्कि रूल कुछ के ज़हूर और कुदरत के साथ आई है। That brought the gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost. इससे ये जाहिर होता है कि अंजील रूल कुछ की कुदरत को जाहिर करने के लिए दी गई है। But all these men go off to seminaries and they learn great educations, how they must stand before the people,
how they must present themselves, how they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar. लेकिन ये सारे आदमी सेमिनरी में जाते और आला तालीम हासिल करने में लगे रहते हैं। वहां उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे लोगों के सामने खड़ा होना है, कैसे उन्होंने अपने आप को पेश करना है, उन्हें किस तरह का लिबास पहनना है और उन्हें किस तरह की अदाकारी करनी है। उन्हें कभी भी गलत ग्रामर इस्तेमाल नहीं करनी है। Now that's all right for a political speech. But we are not after the enchanting words of man. अब ये सब बातें एक सियासी तकरीर करने के लिए तो ठीक है, लेकिन हमें आदमी के दिल को खुश करने वाली बातें नहीं सुननी है। Paul said the gospel that I preached didn't come like that. Amen. When it come through the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstrations. Amen. पालूस कहता है, जो अंजील मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो मुझे ऐसे नहीं मिली, बल्कि रूल कुछ की कुदरत के जाहिर करने और नए तौर से मिली है। Come by a right form speech. That your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man. ये पहले से तैयार करदा तकरीर नहीं है ताकि तुम्हारा फहम और तुम्हारा भरोसा किसी इंसानी अकल पर ना हो, But it come through the demonstrations of the power of the risen Christ. Hallelujah. लेकिन ये मसीह के जी उठने की कुदरत के ज़हूर के साथ आई है। That's the gospel. Amen. To know Him in the power of His resurrection. यही अंजील है, मसीह को उसके जी उठने की कुदरत से जानना। Each one tries to think he's a little smarter than the other man. Each denomination. हर एक तंजीमी आदमी यही सोचने की कोशिश करता है कि वो दूसरे से ज्यादा अक्लमंद है। The Methodists will say, we got the smartest man. The Baptists will say, and the Church of Christ and so forth. We're the smartest. मेथोडिस्ट कहते हैं हमारे पास ज्यादा ज़हीन लोग हैं। बैप्टिस्ट और चर्च ऑफ क्राइस्ट और इसी तरह वो सब कहते हैं हम बहुत ज़हीन हैं। Our people, we don't let just the ordinary man go out and preach the gospel. But they handpick them. बल्कि हमारे लोग, हम मामूली आदमी को अंजील की मुनादी करने के लिए बाहर नहीं भेजते, क्योंकि वो उनके चुने हुए होते हैं। Oh, God have mercy. Handpick them. If they're indoctrinated with their certain doctrine, then they put them in the church. God can't touch him in no way. ए खुदा रहम कर, उनके चुने हुए हैं, वो उनकी दस्तावेजी और खास तालीम को मानते हैं, तब वो उन्हें कलीसिया में रखते हैं। खुदा इसे किसी भी तरह छू नहीं सकता। I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost. God has raised up. Not picked by man or denominations. मैं चाहता हूँ कोई ऐसा शख्स मुझे कलाम सुनाए जिसे रूह कुछ ने चुना हो, किसी आदमी या तंजीम ने नहीं, बल्कि खुदा ने खड़ा किया हो। All knowledge, they say, oh, we know all about it. And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny it. सारा इल्म, वो कहते हैं, ओ हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे रूल कुछ का पहला हरफ तक नहीं जानते, वो इसका इनकार करते हैं। It reminds me of a little book I read one day in California about 10 years ago. I picked it up in an old bookstore. I forget who was the author. इससे मुझे एक छोटी सी किताब की याद आई है, जो कि 10 साल पहले मैं कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था। मैंने उसे पुरानी किताबों की दुकान से खरीदा था। मैं भूल गया हूँ कि उसका मुसन्नफ कौन था। Just a little 10-cent book. But it had some good sense to it. Though it seemed jokingly and cunningly, but I found something in there that sounded like God to me. ये एक छोटी सी किताब 10 सेंट की थी, लेकिन उसमें चालाकी और मजाक की बातों के अलावा अच्छी बातें भी मौजूद थी। लेकिन उसमें मुझे कुछ ऐसी बातें मिली जैसे कि खुदा मुझसे बात कर रहा हो। And one of the little stories started out like this. One morning in a great chicken pen, there was a certain little rooster that thought he had all the knowledge that there was to be known. उसमें एक छोटी सी कहानी थी कि एक सुबह एक मुर्गी खाने में एक छोटा चूजा था। उसने सोचा कि दुनिया में जितना भी इल्म है
वो उसे जानता है। So he flies up on a box and beat his little bill against the box 4 or 5 times, threw back his little head and crowed like you never heard a rooster crow. बस वो उड़कर एक बॉक्स पर बैठ गया और अपनी चोंच उस बॉक्स पर 4 या 5 बार मारी और अपने सर को पीछे को झटका और ऐसी बांग दी जैसी आपने कभी भी किसी मुर्गे की बांग ना सुनी हो। And the others, he attracted their attention and he said, "Ladies and gentlemen of this chicken pen, I would like to speak to you all this morning on some great educational program we have just designed." और इस तरह अपने दूसरे चूजों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया और उसने कहा, इस मुर्गी खाने के खवातीनों हजरात, मैं आज सुबह आप सबको कोई अजीम तालीमी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमने तैयार किया है। Said, "I have required a lot of knowledge in my studying," as he pulled his little glasses over his bill. कहा, मैंने अपने मुताले के दौरान बहुत इल्म हासिल किया है। ये कहते हुए उसने अपनी चोंच पर धरे चश्मे को जरा हिलाया। And he said, "I have decided that we chickens can better ourselves by more knowledge." और उसने कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, हम चूजे ज्यादा इल्म हासिल करके अपने आप को सुधार सकते हैं। Therefore, I can tell you that if we will dig and work in a certain pen or hole, we'll find a certain vitamin that'll make us crow better, prettier feathers. इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि हम कहाँ खोदें और इस दड़बे में हम एक खास सुराख पर काम करें तो हम ऐसे विटामिन ले सकेंगे, फिर हमारे पर और खूबसूरत हो जाएंगे और हम ऊंची आवाज में बांग दे सकेंगे। And I can tell you how we can better ourselves in many different ways. और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हम कौन कौन से तरीकों से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। And the little pullets with their little red combs, they just cackled and said, "Isn't he a darling?" And they certainly admired him. और छोटे चूजों ने अपनी लाल कलगियों को खड़ा किया, उन्होंने शोर मचाया और कहा, क्या ये बहुत प्यारा चूजा नहीं है? और उन्होंने हकीकत में उसे सराहा। Oh, he is such a brilliant rooster. ये वाकई एक ज़हीन मुर्गा है। Reminds me of some of these here seminary preachers. इससे मुझे यहाँ के सेमिनरी के मुनादों की याद आ रही है। Such a brilliant man. There's no need of us hanging around with the rest of the chickens. We all ought to go with him. ये कैसा ज़हीन आदमी है। अब हमें दूसरे चूजों के साथ चलने की जरूरत नहीं है, हम सबको इसके साथ मिलना चाहिए। Well, before the little fellow got his speech finished, there was another little chicken that didn't have such bright feathers. Come running in from the rest of the chicken yard and said, "Boys, just a minute. I just heard the latest bulletin on the radio. Chickens went up 4 cents on the pound. We're all going to the slaughter tomorrow." ठीक इससे पहले कि इस छोटे चूजे की तकरीर खत्म होती, एक दूसरा छोटा चूजा जिसके पर इतने चमकदार नहीं थे, वो दड़बे में से दूसरे चूजों के दरमियान से दौड़ता हुआ आया और कहा, लड़को 1 मिनट रुको, मैंने अभी अभी रेडियो पर ताजा खबर सुनी है, चूजों का मूल 1 पौंड वजन पर 4 सेंट बढ़ गया है और हम सब कल ज़बा होने जा रहे हैं। What good's your knowledge going to do? Brother, all the knowledge that we can accumulate, what good does it do? We're 6 foot of dirt. Amen. आपका इल्म आपकी क्या भलाई करेगा? भाइयों, वो सारा इल्म जो हम हासिल करते हैं उससे हमारा क्या भला हो सकता है? हम 6 फीट की खाक ही तो हैं। We're all dying by inches and by minutes. Our knowledge means nothing. We want to know Him. But they do that. हम सब 1-1 इंच और 1-1 मिनट मर रहे हैं। हमारे इल्म का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन हम तो खुदा को जानना चाहते हैं, लेकिन वो इल्म चाहते हैं। As I was remarking some time ago about a certain little canary, and he thought he knowed all the knowledge that it needed to be known, and he knowed so much that he could tell all the rest of the canaries about the human beings. जैसे कुछ अर्सा पहले मैं एक छोटी कनेरी चिड़िया के बारे में बात कर रहा था और वो सोचती थी कि उसके पास वो सारा इल्म है जिसकी उसे जरूरत है, और उसने सोचा कि वो इंसानों के बारे में इतना इल्म रखती है कि उसे बाकी कनेरी चिड़ियों को बताना चाहिए।
So he flies up on his cage and he begins to speak about the human beings, how he knowed all about them. बस वो अपने पिंजरे से बाहर आई और उसने इंसानों के बारे में बताना शुरू किया ताकि पता चले कि वो इंसानों के बारे में क्या कुछ जानती है. And all of a sudden, a professor from Purdue walked up and began to speak some high, polished words to him, and the little fellow batted his eyes and turned his head. और इसके बाद अचानक एक प्रोफेसर आजमाइश के लिए चलता हुआ आया और बहुत ही मुश्किल अल्फाज में उसने बोलना शुरू किया और उस छोटी चिड़िया ने अपनी पलकें झपकाईं और अपनी गर्दन झटकी. Now he had eyes, he could see the professor. He had ears, he could hear him. अब उसकी आंखें उस प्रोफेसर को देख रही थीं, उसके कान उसको सुन रहे थे. But of course he didn't know what he was talking about. Why? He's got a canary brain. He's just a bird brain. लेकिन वो बिलाशुबा समझ नहीं रही थी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है. क्यों? इसलिए कि उसके पास कनेरी ज़हन था. उसके पास सिर्फ एक परिंदे का ज़हन था. That's all he's got. He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings. यही कुछ उसके पास था. उसके पास इंसानी ज़हन नहीं था, इसलिए वो इंसानों की तरह नहीं सोच सकती थी. And neither can a human being think like God. और इसी तरह एक इंसान खुदा की तरह सोच नहीं सकता. You're human. All the worldly knowledge is no more than a canary brain. आप एक इंसान हैं और सारा दुनियावी इल्म एक कनेरी चिड़िया के ज़हन से बढ़कर नहीं है. All you do, you just hurt yourself with it. You got to have the mind of Christ. सब कुछ जो आप करते हैं उसी से आपको जर पहुंचता है, इसलिए आप में मसीह का ज़हन होना जरूरी है. The reason people go and join organizations and substitute a handshake instead of the new birth, they're trying to bypass the new birth. They don't want the new birth. यही सबब है कि लोग जाते हैं और तंजीमों में शामिल हो जाते हैं और नए सिरे से पैदा होने की बजाय हाथ मिलाते हैं. वो नई पैदाइश को छोड़ देना चाहते हैं. वो नए सिरे से पैदा होना नहीं चाहते. And they know we teach it in the Bible, so they want to substitute something for it. और वो जानते हैं कि ये बाइबल में है जो हम सिखाते हैं, बस वो इसके मुतबादल कुछ चाहते हैं. And the Pentecostal people are just as bad. Trying to substitute something. और इसी तरह वो पेंटिकोस्टल लोग भी बुरे हैं जो इसके मुतबादल कुछ करने की कोशिश करते हैं. They want it in class. It must be just so classy. We'll shake hands and join the church and be sprinkled or baptized or something. वो इसमें कांट छांट करते हैं ताकि ये छोटा हो जाए. हम हाथ मिलाकर कलीसिया में शामिल हो जाएंगे और छिड़काव का बपतिस्मा या कुछ और भी चलेगा. They're afraid of the new birth. I sometimes believe the Branham Tabernacle's getting afraid of it. वो नई पैदाइश से डरते हैं. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ब्रहनम टैबरनेकल भी नई पैदाइश से डरने लगा है. Now we all know that a birth, I don't care where it is or whereabouts, it's a mess. अब हम सब पैदाइश के बारे में जानते हैं. मुझे परवाह नहीं ये कहाँ होती है या कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो, ये गंदगी के साथ है. If a baby's born on a shuck pile, on a hard floor, or in a pink decorated hospital room, it's a mess anyhow. चाहे एक बच्चा पत्तियों या सख्त जमीन पर या अस्पताल के सजे हुए गुलाबी कमरे में पैदा हो, किसी भी तरह ये गंदगी से भरी है. A birth of a calf, birth of anything else is a mess. चाहे ये बछड़ा हो या किसी की भी पैदाइश हो, ये गंदगी से भरी है. And the new birth is nothing less than a mess. और नई पैदाइश भी इससे कम नहीं है. But people are so starchy. We'll go over where they shake hands. We'll go over where they don't bawl and cry and beat on the altar and cry out. मगर लोग बहुत ज्यादा अदब वाले बन गए हैं. कहते हैं हम वहाँ जाएंगे जहाँ लोग सिर्फ हाथ मिलाते हैं. हम वहाँ जाएंगे जहाँ वो चीखते चलाते नहीं हैं और मजबा पर रोते और टकरे नहीं मारते. You want to be too human. What we need is birth, dying out that brings forth life. आप बहुत ज्यादा इंसानियत अपनाए हुए हैं. हमें कितना मरने और नई पैदाइश हासिल करने की जरूरत है ताकि जिंदगी वजूद में आ सके.
a seed, an old potato, a seed potato. You take that potato and put it in the ground until you can have new potatoes. That old potato has to rot. आप एक पुराने आलू के बीज को लें, एक बीज वाले आलू को लें, आप एक आलू लें और उसको जमीन में दबा दें। जब तक वो पुराना आलू गल सड़ नहीं जाता, आपको नए आलू नहीं मिलेंगे। A corn cannot produce new life until it's rotten. एक दाना जब तक गल सड़ नहीं जाता, नई जिंदगी नहीं आती। And a man or a woman can never have new birth until their intellectuals and their own self is rotten, dead. Amen. Die out at the altar and scream. Get all messed up. Till a place of starch gets out of your collar and you're born again by the Spirit of God. और इस तरह जब तक एक मर्द और एक औरत का अपना इल्म और खुद गर्जी गल सड़ नहीं जाते, वो नई पैदाइश नहीं पा सकते। मौत, मजबा पर मरना और चीख उठना, और जहाँ पसीने से आपके कॉलर की कलफ अलग हो रही हो और सब कुछ गंदा हो रहा हो, तब खुदा के रूल कुछ से आप नई पैदाइश हासिल कर सकते हैं। I don't care if you squall, speak in tongues, jump up and down, flop like a chicken with his head off. You're bringing forth new life. Amen. मुझे परवाह नहीं, आप चीख रहे हैं या गैर जुबाने बोल रहे हैं, ऊपर नीचे उछल कूद रहे हैं या एक चूजे की तरह सर हिला रहे हैं, क्योंकि आप एक नई पैदाइश हासिल कर रहे हैं। But we substituted something for it. Amen. We want the classical way. Praise God. Sure. लेकिन हमने तो इसके मुतबादल कोई और तरीका अपना लिया है। यकीनन हम तो कोई आला तरीका चाहते हैं।